Very good afternoon, students. It's our second lecture on complex analysis. By mistaken, in last lecture I have written there as a functional analysis, but it is not a functional analysis. It is a complex analysis. That unit name complex analysis. And in previous lecture we have to see how to calculate or how to construct the analytic function f of z. And if your f of z should be in the form of f of z is equals to u plus ib, that u is called as a real part of that f of z and v is called as a imaginary part of that f of z. And if f of z is an analytic function, so obviously it satisfies the CR equations. Okay, so there is another method to how to find the f of z or how to calculate the f of z directly. If any part of that f of z, that is the real part of that is a imaginary part, if any part of f of z is given, so how to calculate the f of z directly? It is a very easy method and maximum time you can use to solve the problem. So not so lengthy method, so you can easily calculate the f of z. So we will see here, suppose that f of z equals to u plus iv is analytic function. As it is analytic function, so obviously it satisfies the CR equations. So by CR equations, how we can write here? As we know that this u and v both are the functions of x and y. Here u and v are functions of x and y. So by CR equations or by CR conditions, how we can write? By the CR equations we can write the partial derivative relation, that is del u by del x is equals to del v by del y and del u by del y is equals to minus del v by del x. So that relation we have. As f of z equals to u plus iv is analytic, so by the condition or by the that expansion we have the relation, as we can write here as f of z is analytic. Then its derivative, then if you consider the derivative of dash of z, it has a value that is a del u by del x plus I into del v by del x. You can calculate the dash of z in that form, that is del u by del x plus I into del v by del x. Now possibility is that, अब यहाँ पे क्या possible हो सकता है कि अगर हमें u दिया रहेगा या v दिया रहेगा and you have to calculate the f of z or you have to construct the f of z. अब f of z कैसे निकालेंगे? Suppose we have given a v. Suppose u is given, v की जगह suppose u is given, and to find what you have to find? We have to find f of z. हमें डायरेक्टली f of z निकालना है और हमें u given. अब हमें as we have given a u, suppose that is the equation number 1. As we have given a u, अगर u हमें दिया है, so you can calculate del u by del x. Obviously del u by del y, ये दोनों भी वैल्यू हमें मिल सकती है अगर हमें u दिया है. So हम क्या करेंगे? अब from that you can calculate del u by del x as well as del u by del y. अब हमारे पास क्या है? f dash of z. हमें पता है कि f dash of z की वैल्यू क्या है? del u by del x plus I into del v by del x. अब जहाँ हमें u दिया है, मतलब हमें del u by del x मिलेगा, पर यहाँ पे तो del v by del x है, तो del v by del x की वैल्यू तो हमारे पास नहीं रहेंगी क्योंकि we have given u. तो हम क्या करेंगे फिर? by using that CR equations, CR equation का यूज करके हम क्या करेंगे? del v by del x को रिप्लेस करेंगे माइनस del u by del y. So हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? using CR equation, then we have del u by del x and del u by del y. So हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे CR कंडीशन का यूज करेंगे. बाय दी CR कंडीशन क्या रहेंगे हमारे पास? CR कंडीशंस और CR इक्वेशंस क्या रिलेशंस रहेंगे कि ये रिलेशंस है हमारे पास. हम क्या करेंगे? del v by del x को रिप्लेस कर देंगे माइनस del u by del y से. यूजिंग दैट CR इक्वेशंस इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में? इक्वेशन यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड देयरफॉर f of z इज इक्वल
टू डेल यू बाय डेल एक्स, तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, बट डेल वी बाय डेल एक्स की रिप्लेसमेंट हो जाएंगी माइनस डेल यू बाय डेल वाई से। तो यहाँ पे माइनस साइन आएंगी, आई तो एज इट इज रहेगा, पर ये हो जाएगा हमारा डेल यू बाय डेल वाई। तो यहाँ पे तो हमारा क्या है, एफ डैश ऑफ जेड है। सो ये तो हो गए हमारी टर्म। अब हमें पता है कि u और v बोथ फंक्शन रहते हैं x और y के। अब जब आप उसके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे u विथ रिस्पेक्ट टू x एंड u विथ रिस्पेक्ट टू y, सो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड y वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम उसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ z इज इक्वल्स टू, सपोज दैट डेल यू बाय डेल x इज इन द फॉर्म ऑफ m ऑफ x y, प्लस इसको यहाँ पे माइनस साइन की एडजस्टमेंट, यहाँ पे सपोज ये माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वाई हम कंसिडर करेंगे, सपोज दैट इज n ऑफ एक्स वाई, दोनों भी क्या रहेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y रहेंगे। तो सपोज वी कंसिडर इट एज अ m ऑफ एक्स वाई प्लस i इंटू n ऑफ एक्स वाई, वेयर m इज इक्वल्स टू, लगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वेयर m इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स एंड n इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाय, ऐसे फॉर्म में हम उसको कंसिडर करते हैं। अब अगर थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, अब मिलनेस मेथड क्या रहती है कि मिलनेस मेथड से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो हमारा x रहता है उसे z से रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं z से और y को रिप्लेस करते हैं 0 से, तो क्या हो जाएगा, टोटल टर्म आ जाएंगे हमारे z के फॉर्म में। और जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव की टर्म है f डैश ऑफ z, अब अगर हम दोनों साइड से z से इंटीग्रेशन करेंगे, सो ऑब्वियसली वी गेट अ वैल्यू ऑफ f ऑफ z। So by the Milnes method, how we write here? By Milnes method, what we have to put or we have to write? We put x is equals to z and y equals to 0. We put x is equals to z and y equals to 0. So in above equation, suppose that is your equation number 2. तो 2 में क्या changes हो जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा f dash of z is equals to m of z 0 plus I into n of z 0। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, x की रिप्लेसमेंट z से हो गई और y की रिप्लेसमेंट 0 से हो गई। अब आप अगर देखेंगे तो दोनों साइड में z की टर्म से यहाँ पे f dash of z है, सो ऑन इंटीग्रेटिंग what we get, on integrating we get a integral of f dash of z, that is equals to integral of, here is a m of z0 plus I into n of z0 और दोनों का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू z। सो ऑब्वियसली हमारा जो f डैश ऑफ z है, f डैश ऑफ z का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z वो हो जाएगा f ऑफ z, और हमें जो कुछ भी आंसर मिलेगा दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ दैट z। सो इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर f ऑफ z directly by using a Milnes method. So that is the construction of f of z directly when we have given any real part or any imaginary part. So in this way we can calculate the f of z, that is integral of f dash of z, that is the f of z। ये साइड अगर आप अगर इसके इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे भी z की टर्म रहेंगी, सो विथ रिस्पेक्ट टू z यू कैन इंटीग्रेट दैट एंड फाइनली ये जो कुछ भी टर्म आएंगी दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ z। ओके, सो वी विल कंटिन्यू ऑन दैट साइड। Now there is one problem we have given, I have written that problem on that side. Find a f of z equals to u plus iv। अब यहाँ पे f of z एनालिटिक फंक्शन है जो नहीं लिखा होगा मैंने यहाँ पे, बट इट इज एनालिटिक एंड वी हैव गिवन हियर द रियल पार्ट ऑफ दैट f of z। अब रियल पार्ट मीन्स u और v हमें नहीं दिया है, वी हैव गिवन दैट रियल पार्ट एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द f of z। ओके, so f of z we have written here analytic function, we have given a real part that is u is equals to y cube minus 3x square, y हमें f of z निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, we can take calculate the derivatives of that u with respect to x and y। So we take a del u by del x। del u by del x क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 0 हो जाएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे तो यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x and that 2x into 3 that is a 6, so it become minus 6xy and then we take a del u by del y। del u by del y क्या हो जाएगा यहाँ पे,
डेल यू बाय डेल वाई अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे एक वाई क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y² और यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1, सो सिंपली रहेगा यहाँ पे 3x²। ये हो जाएगा आपका डेल यू बाय डेल वाई। अब हमें डेरिवेटिव मिल गए हैं, सो बाय दी सीआर कंडीशन हमें हमारे पास है, बाय सीआर इक्वेशंस क्या रहता है हमारे पास रिलेशन, बाय दी सीआर इक्वेशंस वी हैव डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ये रिलेशन हमारे पास है, सो इसका यूज करेंगे। और हमें ये भी पता है कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम, एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू रहती है डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। तो इसको तो हम नंबर दे देंगे, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1 सपोज, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे लास्ट केस में मैंने बताया कि जनरल एक्सप्रेशन बताया मैंने कि मिलनेस मेथड से हाउ टू कैलकुलेट द एफ ऑफ जेड, तो हमें पता है हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे u दिया है, सो ऑब्वियसली वी हैव डेल यू बाय डेल एक्स, बट हमारे पास डेल वी बाय डेल एक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे डेल वी बाय डेल एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस डेल यू बाय डेल वाई से। तो हमारा एफ डैश ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जेड हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स, तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे आ जाएंगे आपकी माइनस साइन और ये हो गया माइनस ऑफ आई डेल यू बाय डेल वाई। ओके, तो इन दिस फॉर्म में आ जाएगा। Now we put that values of del u by del x and del u by del y here. So हमारा del u by del x क्या है यहाँ पे, हमारा del u by del x है माइनस 6xy माइनस ऑफ i, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है del u by del y की, दैट इज 3y² माइनस 3x। अब इस साइड आ जाते हैं हम, सो व्हाट वी गेट हियर, दैट गिव्स f डैश ऑफ z इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ z इज इक्वल्स टू, अब ये तो एज इट इज हम यहाँ पे रखेंगे इसको माइनस ऑफ 6xy। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस साइन ब्रैकेट को अप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस आई लिखते हैं और ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज 3x² माइनस 3y²। तो ये तो हो गया आपका एफ डैश ऑफ जेड। अभी एफ डैश ऑफ जेड आ गया हमारा बाय दी मिलनेस मेथड। मिलनेस मेथड से क्या करते हैं हम, बाय मिलनेस मेथड क्या करेंगे हम, बाय दी मिलनेस मेथड जैसे मैंने बताया है लास्ट स्टेप में कि हम रिप्लेस करते हैं x को z से और y को 0 से। बाय दी मिलनेस मेथड वी रिप्लेस x बाय z एंड y बाय 0 इन दैट अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर f डैश ऑफ z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो हो जाएगा, अब अगर आप यहाँ पे z को x को z करेंगे और y को 0, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएंगी। ओके, सिंपली यहाँ पे क्या रहेगा i 3x² माइनस 3y²। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो माइनस ऑफ 6, यहाँ पे z हो गया, ये 0 हो गया, ये प्लस i एज इट इज रहते हैं, यहाँ पे हम अगेन x को रिप्लेस करेंगे z² से, और ये लास्ट टर्म हमारी y 0 होने की वजह से 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एफ डैश ऑफ z इज इक्वल्स टू i 3z² और 3z² r। ओके, तो अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है एफ ऑफ z की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्वियसली अब दोनों साइड में z है तो विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ z, यहाँ पे डैश ऑफ z यहाँ पे हो जाएगा, i तो बाहर निकाल लेंगे, 3z² dz। तो यहाँ पे भी अब देखते हैं, अब बताओ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या होगा उसके इंटीग्रेशन। क्या होने वाला है, एफ डैश ऑफ जेड का इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड, और यहाँ पे आई एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है, पर हमें पता है कि z² का इंटीग्रेशन z³ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज और एफ ऑफ जेड, यहाँ पे 3 गेट कैंसिल, और ये हो गया हमारा i z³ प्लस i इंटू,
दैट इज अवर एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू आई जेड क्यूब. सपोज हम आई सी बोथ आर द कांस्टेंट टर्म, इसको रिप्लेस करेंगे सी. So in this way we can construct the f of z directly by using a Miller's method. Simply what you have to do, you have to replace x by z and y by 0. आपको कोई भी एक पार्ट दिया रहेगा f of z का, इट मे बी द रियल और इट मे बी द इमेजिनरी. CR कंडीशंस का यूज करना है आप लोगों को. और यहाँ पे जो f डैश ऑफ z की टर्म रहती है, यहाँ पे अगर v होगा आपको दिया तो u को रिप्लेस करना पड़ेगा, u के डेरिवेटिव को. अब और अगर u का डेरिवेटिव u दिया है तो v के डेरिवेटिव को रिप्लेस करना पड़ेगा वहाँ पे u के डेरिवेटिव से बाय यूजिंग अ CR कंडीशन, एंड देन यू कैन कंस्ट्रक्ट द f of z directly. So that's one of the easy method to calculate the f of z. So hope you understand that. अच्छे से इसको रिवाइज करो, बहुत इजी मेथड है ये to calculate f of z. Now we will continue one another problem. Now we see second problems on that same method, that is the Miller's method. अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस क्या है कि यहाँ पे f of z जो हमें दिया है इट इज इन द फॉर्म ऑफ r and थीटा. पोलर के फॉर्म में f of z हमें दिया है, दैट इज u of r थीटा प्लस i into v of r थीटा. मतलब यहाँ पे u और v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ r and थीटा. और यहाँ पे f of z हमें दिया है कि a of दैट इज एनालिटिक फंक्शन. हमें v की वैल्यू दी है, v इज इक्वल्स टू r स्क्वायर इन हियर cos 2 थीटा माइनस r into cos थीटा. अब एज इट इज हम f of z को लिख लेते हैं विच इज एनालिटिक फंक्शन. हमें इमेजिनरी पार्ट इसका दिया है, दैट v इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट, तो उसकी वैल्यू हमने लिख ली r स्क्वायर cos 2 थीटा माइनस ऑफ r cos थीटा. अब हमें v दिया है, सो ऑब्वियसली वी कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट v विथ रिस्पेक्ट टू r एंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव निकालेंगे v का. अब यहाँ पे जब विथ रिस्पेक्ट टू r हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जो थीटा है तो वो कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 2r और cos 2 थीटा एज इट इज रहेगा. यहाँ पे r का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस cos थीटा रहेगा. अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज डेल v बाय डेल थीटा. अब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो r स्क्वायर एज इट इज रहेगा. r स्क्वायर एज इट इज cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा. cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा और थीटा का रिपीट डेरिवेटिव 2 थीटा का 2 और यहाँ पे r एज इट इज रहेगा अगेन cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा. सो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा माइनस 2r स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा माइनस माइनस बिकम अ प्लस r साइन थीटा. तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे माइनस, ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस 2 r स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए r प्लस r इंटू साइन थीटा. आपको समझ में आ गया होगा. r स्क्वायर हमने एज इट इज रखा, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा एंड रिपीट डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा दैट इज 2 माइनस r एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड माइनस माइनस बिकम अ. सो इन दिस वे वी हैव रिटन दैट. अब CR कंडीशन जो रहती है पोलर फॉर्म में वो चेंज रहती है थोड़ी. यहाँ पे डेल यू बाय डेल आर इज इक्वल्स टू रहता है 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा एंड डेल यू बाय डेल थीटा इज इक्वल्स टू माइनस आर डेल वी बाय डेल आर. तो थोड़ी ये कंडीशन यहाँ पे रिमेम्बर रखना अच्छे से कि हाउ टू कैलकुलेट दैट. तो आर डेल यू बाय डेल आर 1 बाय इक्वल्स टू 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा एंड डेल यू बाय डेल थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस आर रहता है डेल वी बाय डेल. सो रिमेम्बर. अब अगेन एफ डैश ऑफ जेड शुड बी इन दिस फॉर्म. यहाँ पे अब एक्स और वाई की जगह आर और थीटा आ गए हैं, तो यहाँ पे डेल यू बाय डेल आर प्लस आई इंटू डेल वी बाय डेल थीटा. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डेल वी बाय डेल थीटा है बट हमारे पास डेल यू बाय डेल आर नहीं है. तो हम डेल यू बाय डेल आर को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 बाय आर इंटू डेल वी बाय डेल थीटा से रिप्लेस करेंगे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल्स टू that del u by del r is replaced by 1 by r del v by del theta plus I del v by del. तो इस फॉर्म में अब हमारी टर्म आ गई. ओके, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यूजिंग इक्वेशन 1 या यूज द इक्वेशन 1. अब हम उस साइड चले जाते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम
डेल यू बाय डेल थीटा की, सॉरी डेल बी बाय डेल थीटा की और डेल बी बाय डेल आर। तो एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 बाय आर, तो एज इट इज रहेगा। डेल बी बाय डेल थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज डेल बी बाय डेल थीटा, इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 2r स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा प्लस r साइन थीटा। ये हो गया हमारा 1 बाय आर डेल बी बाय डेल थीटा, अब प्लस आई इंटू डेल बी बाय डेल थीटा। डेल बी बाय डेल थीटा, सॉरी हमने पहले हमें ये हमारा डेल यू बाय, यहाँ पे डेल यू बाय डेल आर, डेल बी बाय डेल आर, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे डेल यू बाय डेल आर प्लस आई इंटू डेल बी बाय डेल आर रहेगा। सो यहाँ पे डेल यू बाय डेल आर तो रिप्लेस होगा 1 बाय आर डेल बी बाय डेल थीटा से, और यहाँ पे हमारा डेल बी बाय डेल आर ही रहेगा। सो रिमेम्बर दैट यहाँ पे डेल यू बाय डेल आर प्लस आई इंटू डेल बी बाय डेल आर। जैसे हम एक्स की फॉर्म में रहता है हमारा एक्स और वाई के, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल बी बाय डेल एक्स, जो पहला वेरिएबल रहता है। अब यहाँ पे हम आर है बस, तो हमने यहाँ पे दोनों भी आर रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, डेल यू बाय डेल आर विथ रिस्पेक्ट टू आर डेल बी बाय डेल आर। अब डेल यू बाय डेल आर नहीं है तो हमको रिप्लेस करना पड़ेगा 1 बाय आर डेल बी बाय डेल थीटा से प्लस आई एज इट इज, और ये डेल बी बाय डेल आर एज इट इज। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 बाय आर एज इट इज तो है, डेल बी बाय डेल थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब पुट करेंगे डेल बी बाय डेल आर। तो डेल बी बाय डेल आर क्या है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट 2r cos ऑफ 2 थीटा माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा। अब जैसे कि मिलनेस मेथड क्या रहती है हमारी, बाय द मिलनेस मेथड हम क्या करते हैं, मिलनेस मेथड से हम रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे मिलनेस मेथड से, जब कार्टेशियन के फॉर्म में रहते हैं हमारे कोऑर्डिनेट तो हम x को रिप्लेस करते हैं z से और y को रिप्लेस करते हैं 0 से। अब यहाँ पे हमारे पोलर के फॉर्म में है तो r को रिप्लेस करेंगे हम z से और थीटा को रिप्लेस करेंगे हम 0 से। ओके, सो अब ऊपर क्या चेंजेस हो जाएंगे, सो हियर इज एफ डैश ऑफ z इज इक्वल टू r हमारा रिप्लेस हो गया 1 बाय z, यहाँ पे माइनस ऑफ 2r स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू 0 प्लस r अगेन रिप्लेस बाय z साइन ऑफ 0 प्लस अगेन यहाँ पे i, अब यहाँ पे 2z cos ऑफ 2 0 माइनस cos ऑफ 0, ऐसे चेंजेस हो। ओके, क्या हो गया यहाँ पे r इज रिप्लेस बाय, यहाँ पे मैंने r ही रखा बट इट इज रिप्लेस बाय z, सो ये हो गया z स्क्वायर। सो अगेन एक बार अच्छे से देख लो इसको, एफ डैश ऑफ z 1 बाय z माइनस 2z स्क्वायर साइन 2 0 प्लस r इज रिप्लेस बाय z साइन ऑफ 0 प्लस i 2z cos 2 0 माइनस cos ऑफ 0। So see once again that term। हो जाएगा एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो टोटल टर्म 0 इंटू समथिंग बिकम 0। यहाँ पे रहेगा आई एज इट इज, यहाँ पे 2z, हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 रहती है और अगेन cos ऑफ 0 इज नथिंग बट 1। तो ये तो हो गया हमारा i इंटू 2z माइनस एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू i इंटू 2z माइनस 1। अब इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, क्या होगा फिर एफ डैश ऑफ z का इंटीग्रेशन एफ ऑफ z हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो आई बाहर निकाल लेंगे हम। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 2z माइनस 1 का विथ रिस्पेक्ट टू z, तो वो क्या हो जाएगा एफ ऑफ z इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे हो जाएगा 2z स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ z, 2 to get cancel and finally what we get finally f of z is equals to I into यहाँ पे हो जाएगा z square माइनस z, या हम कॉमन भी निकाल सकते हैं z, so that is f of z is equals to I into z square माइनस z। So in this way we get f of z is equals to I into z square माइनस z, यहाँ से आप z भी कॉमन
निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाला तो भी चलेगा. So in this way we get the f of z, where now we are given a imaginary part and that is problem in terms of r and theta. So remember that again, it is a important, and I will give you 2 problems on that same method for your homework. Now these are 2 problems for your homework. यहाँ पे f of z हमें दिया है in the form of u plus iv. f of z analytic है और using a Milnes method you have to find a f of z. अब v यहाँ पे दिया है, मतलब हमें यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट दिया है f of z का, तो हमें f of z निकालना है बाय यूजिंग Milnes मेथड. सेकंड प्रॉब्लम में भी हमें f of z ही निकालना है, बट यहाँ पे हमें u दिया है, मतलब हमें रियल पार्ट दिया है f of z का, और रियल पार्ट कंसीडर करके हमें f of z निकालना है. ऑब्वियसली वी हैव टू यूज द Milnes मेथड. आंसर मैंने प्रोवाइड नहीं किए, दोनों भी अनसॉल्व है, लगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर आप लोगों को अच्छे से बता दूंगी कि क्या आता है. सो यू हैव टू सॉल्व दैट बोथ प्रॉब्लम by using a Milnes method, and here we will stop our second lecture on complex